Good evening to one and all. So, we are taking characteristics of homeopathy medicines in children, and this is part 4. And as usual, this was Dada's initiative of taking because he had many kids um, in case histories, and he was very excited about this whole constitutional treatment sort of a thing. Though he always believed in all the aspects like combinations, yeah, bio combinations, even single remedies, but he always believed कि अगर बच्चों में अगर case history is taken and given properly, तो वो constitutional remedy से there is an overall growth in kids. So yes, we all know, again, I like to repeat this in every session, that in homeopathy, we treat the patients. We do not treat the disease. And this sort of a treatment is known as constitutional treatment. And the constitutional treatment's base is generally on the physical and mental of the general, because especially during the relapses, या ये कह सकते हैं heredity cases में, so as to go into the root of the disease and eradicate it. And if we are successful in the constitution treatment, trust me, you can find the overall growth in the children. अगर ये चिल्ड्रन में होता है तो you can see wonderful overall growth in the children. But this single remedy is, of course, Hahnemann's philosophy, we all know. But the care should be taken in case history. And it is required considerable amount of time, care and awareness is required in case histories. ऐसा नहीं होता है, especially जो पेशेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स वी नो, उन बहुत इम्पेशेंट होते हैं वो लोग कि उनको लगता है जल्दी से रिजल्ट मिले, जैसे एलोपैथी में मिलता है. उसके अपने बेनिफिट्स हैं. लाइक इफ वी आर इनटू इमरजेंसी, अगर कैंसर है या कोई ऑपरेशन नीडेड है, सो हमें अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए. वी शुड हैव अ ब्रॉड माइंड टू अडॉप्ट ऑल द रेमेडियल या मोडालिटीज जिसे कहना चाहिए, जब जिसकी जहां जरूरत हो वो चीज हमेशा यूज करनी चाहिए. But in homeopathy, lot of time, care, and awareness is required, as I just put it up. Then you choose the remedy accordingly, and you keep on, repeating the same remedy until you get the result. Then again, you reopen the case or you revise the case. You go a step further, see what your next step should be. If the remedy has to be changed, change the remedy, or you continue doing this until you get the success for the patient and success for the doctor, both. So yes, this is a repeated version every time, but we have Dr. Reshma, and I would like to invite Dr. Reshma. Dr. Reshma, kindly unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Thank you. Thank you, ma'am. मैं स्टार्ट कर दूं ना मेडिसिन? रेमेडी बता दीजिए और then you better. Okay. Okay. Today I will take the medicine, homeopathic medicine, Pulsatilla. आज मैं पल्सेटिला के बारे में आपको क्लिनिकल टिप्स दूंगी, बहुत बहुत थोड़ी थोड़ी. पल्सेटिला चाइल्ड इज अ वेरी माइल्ड, टिमिड एंड शाई नेचर का होता है. यील्डिंग डिस्पोजिशन होता है बच्चे का. चाइल्ड इज वेरी सेंसिटिव एंड वीप्स वेरी इजीली. थोड़ा सा भी आप उसे डांट देते हो तो बच्चा तुरंत रोना शुरू कर देता है. दे नीडिंग एंड शोइंग लॉट्स ऑफ अफेक्शन. जैसे उनको हक करना, किस करना बच्चों को बहुत पसंद होता है. मेजोरिटी टाइम्स दे कम्स इन अवर क्लिनिक विद क्लीन देयर मदर्स. अपनी मम्मा का हाथ पकड़ के आएंगे, इतने शाय और टिमिड बच्चे होते हैं. दे ऑलवेज वांट्स कंपनी, फियर टू बी अलोन. जैसे क्लिनिक में आके बैठते हैं बच्चे तो वो अपने पेरेंट्स के नजदीक बैठना पसंद करते हैं, इतने डरते हैं. जैसे हम उनको क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हुआ है बेटा, तो वो सीधा हमें आंसर नहीं करते. वो मम्मा के सामने देखते हैं कि मम्मा आप आंसर करो, मुझे नहीं बोलना. और कई बार कैसे करते, मम्मा बोलती है कि नहीं बेटा आप बोलो, तो वो कैसे करेंगे, ऐसे मुंडी हिला के आंसर देंगे या हाँ या ना में आंसर करेंगे. हम पूछते हैं उनको, जैसे फीवर है बेटा, हाँ. खांसी भी है साथ में, तो बोलेंगे हाँ. ऐसे ही आंसर करना उनको बहुत पसंद होता है. थोड़े मैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताती हूँ जो फिजिकल होते हैं. बच्चों पल्सेटिला चाइल्ड के सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो एवर चेंजिंग होते हैं, हर बार चेंज होता है. नो टू स्टूल्स, नो टू चिल्स, नो टू अटैक्स आर अलाइक. थकलेसनेस विथ एवरी कंप्लेंट.
विथ ड्राई माउथ। प्यास तो बिल्कुल होती नहीं है ड्राई माउथ होने के बाद भी। सिक्रीशन फ्रॉम ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे उनके डिस्चार्ज होते हैं वो पर्टिकुलर डिस्चार्ज होते हैं, जैसे ब्लैंक, थिक, येलोइश ग्रीनिश इन कलर होते हैं बच्चों को डिस्चार्ज। उनको गैस्ट्रिक कंप्लेन जैसे होती है, तो किससे होती है गैस्ट्रिक कंप्लेन? उन लोगों को स्वीट्स, फैटी फूड, केक, पेस्ट्री, उन सबसे उनको गैस्ट्रिक कंप्लेन होती है। उनको पसंद है लेकिन उससे तकलीफ बहुत होती है उन लोगों को। ये बच्चे जैसे फीवर के ऐसा कुछ हो या कोई भी फिजिकल कंप्लेन होती है तो वो अपनी मम्मा को अपने पास में पास में चाहते हैं कि नहीं मम्मा मुझे प्यार करे, मुझे सहलाए, मेरे पास ही बैठे रहे। फीवर के ड्यूरिंग उनका मोर्निंग बहुत होता है। मोर्निंग मीन्स जैसे कराते हैं ना बच्चे, ऐसे करके वो कराते ही रहते हैं। पल्सिटिला चाइल्ड बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं। उनको पता है कि उनको मम्मा के पास से कुछ चाहिए तो कैसे लेना है, वो उनको बहुत पता है, बहुत अच्छे से पता होता है। वो सबको मैनिपुलेट करते हैं। जैसे उनको कुछ कोई चीज चाहिए मम्मा से, और मम्मा ने बोला है कि आज नहीं मिलेगी बेटा, तो वो कैसे मम्मा के पास जाएंगे, उनको हक करेंगे, किस करेंगे और बोलेंगे नहीं मम्मा आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, मम्मा आप तो मुझे कुछ लेके ही नहीं देते। ऐसे प्यार से इतना बहला फुसला के मम्मा के पास से वो चीज अपनी जो लेनी है वो लेके ही छोड़ेंगे। इतने मैनिपुलेटिव होते हैं चाइल्ड। ये बच्चे कंप्लेन भी करते हैं तो पीटीएस वे से करते हैं। वो उनको पीटी दिखना बहुत पसंद होता है कि उनके तरफ कोई उनपे कोई दया खाए, वो अच्छा लगता है। उनकी तरफ ध्यान दे, उनको प्यार से उनकी बात भी सुने, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको फियर होता है, अकेले रहने से बहुत डर लगता है। नैरो प्लेसेस होती है, डार्कनेस होता है, वहां पे उनको बहुत डर लगता है। उनको ऑलवेज कंपनी कंपनी चाहिए, अकेले नहीं रह सकते। इनका एक जो चाइल्ड छोटे बच्चे होता है ना, इनका एक फीचर्स होता है, जैसे ये रोते हैं ना तो वॉमिट करने के बाद ही चुप होता है। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। कोई कंप्लेन नहीं होती, गैस्ट्रिक कंप्लेन कोई नहीं है, ऐसे इतना रोते हैं कि रोने के बाद वॉमिट होती है तभी ये शांत हो जाएंगे, ऐसे होता है। ये बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू रूडनेस एंड हार्शनेस ऑफ पेरेंट्स। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बोलते हैं कि मम्मा आप डांटो लेकिन प्यार से डांटो, इतना जोर से चिल्लाओ मत। इवन पेपर के कट फाड़ते हैं ना, पेपर कट करते हैं, उसकी आवाज भी उनसे सहन नहीं होती है। इतने सेंसिटिव बच्चे होते हैं ये। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं सबकी गुड बुक में रहूं। जैसे घर में मम्मा की हेल्प करेंगे, घर में भी सबसे ऐसे अच्छे से बना के रखेंगे, स्कूल में भी टीचर के फेवरेट स्टूडेंट होते हैं ये पल्सेटिला। दे ऑलवेज लाइक हगिंग एंड किसिंग ऑफ अदर्स, नीड्स अफेक्शन, बस ऐसे ही चाहते हैं आप मुझे बस प्यार करो प्यार करो। जितना भी प्यार करे वो एब्जॉर्ब ही करते जा रहे हैं। और अटेंशन उनको ऐसे सीकर्स। बस एक, हाँ अटेंशन अटेंशन सीकर्स सीकर। होते हैं ये लोग। हाँ, बस इतना ही मेरी तरफ से। थैंक यू मैडम। आप बहुत ही बहुत अच्छे से बोले, और मुझे ध्यान है आपके पास एक पल्सेटिला का पेशेंट है, एंड यस एंड द रिजल्ट्स आर क्वाइट गुड इन दैट. यस So यस someday when we finish all the remedies, I would like you to share the case also. श्योर। So yes, of course, I am waiting for Mansi. Mansi is about to join. Meanwhile, she joins. Let me take the remedy, next remedy, that is Staphylococcus. Right. So अभी मैडम ने ये समझाया, उससे पहले हमने ट्यूबर लिया था, उससे पहले हमने कैमोमिला लिया था. So after pulsatilla, yes, just let me pen. Okay. So today is Staphylococcus. एंड दिस इज अगेन अ वेरी वंडरफुल रेमेडी. और इस ये जो बच्चे होते हैं इनके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ट्यूबर में बच्चों के टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक, इनफैक्ट सब रेमेडीज में बच्चों के कहीं ना कहीं एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो एज वी गो फर्दर यू विल फाइंड इट वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि ऐसा भी नेचर कर सकती है, और वो भी बच्चों के साथ. बट बोलते हैं ना कि कई बार कैसा होता है कि beyond heredity, it is how a mother's behavior, उसका mental agitation, उसकी mental state क्या है प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी बच्चे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. अगर वो खुश है, जैसे इसीलिए बोला जाता है, पुराने लोग बोलते थे कि प्रेगनेंसी में औरत हमेशा खुश रहे,
घर वाले उसको हमेशा सुखी रखें, उसके दिमाग पे कोई भी स्ट्रेस नहीं हो। उसका एक मेन रीजन ये है कि वो बच्चे पे इफेक्ट करता ही करता है। माँ की मेंटालिटी प्रेगनेंसी में इट अफेक्ट्स द चाइल्ड 99%। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप, कई बार पेशेंट दादा के पास आते, दादा हमारे घर में तो ऐसा कोई भी नहीं है। दादा पहले पूरी बात सुनते थे, क्योंकि वो एक तरह का अंदर का उबाल होता है पेरेंट के अंदर। दे आर वेरी एजिटेटेड, साथ साथ में दे आर वेरी एग्जॉस्टेड। एक एक डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे को पालना इट इज नॉट इजी। तो वो जब पूरा अपना अंदर का वो निकाल देते थे, फिर दादा धीरे से पूछते थे कि मैडम आप प्रेग्नेंट थे तब क्या हुआ था प्रेगनेंसी में, आपकी प्रेगनेंसी कैसी थी। इन अ वेरी माइल्ड फॉर्म ही वुड आस्क। और वहां से वो निकलती थी, रूट कॉज वहां पे निकलता था कि वो कहीं ना कहीं वो मदर की मेंटालिटी पे या मदर की एजिटेशन पे, या प्रेगनेंसी में जो भी हार्मोनल डिफरेंसेस हुए या जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुए, वो इफेक्ट करता है बच्चे पे, जो कि हम कई बार बच्चों के अंदर देखते हैं। सो यस, विदाउट डिले आई विल स्टार्ट विद स्टेफिस्केरिया। दीज किड्स दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर वेरी सेंसिटिव। जनरली बच्चे होते ही ऐसे, वेरी सॉफ्ट, सेंसिटिव, माइल्ड इन नेचर होते हैं। दे आर वेरी आर्टिस्टिक, दे आर वेरी अफेक्शनेट। और एक दूसरी तरफ यही स्टेफिसगेरिया के बच्चे होते, दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, कैप्रिशियस, जो एक वर्ड जनरली बुक्स में यूज किया गया है, सन की, which I do not like using very harsh word for children, but yes, of course, इनके लिए capricious एक word use किया गया है। बहुत righteous होते, उद्यमी होते, फसादी होते हैं बोला जाता है, and very short tempered in nature। तो ये दो तरह के आपको स्टेफिस्केरिया वाले बच्चे दिखेंगे। एंड दे हैव वेरी वेरी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनको आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। बट लेट्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ किड्स। द वन हु आर वेरी मॉडेस्ट, द वन हु आर वेरी सेंसिटिव, द वन हु आर वेरी अफेक्शनेट, they will never back answer to the, whenever you are scolding to them, they will never back answer, whether teachers हो या उनके parents हो, कोई भी करेगा तो they will never back answer, they will feel bad inside, अंदर ही अंदर रोएंगे, उनको बहुत बुरा लगेगा, but they will never back answer. This is the one of the very good characteristics. एंड धीरे धीरे कैसा होता है ना कि दे विल नेवर डिमांड फॉर एनीथिंग। उनको लगेगा ये मेरा राइटफुली इट इज माइन, बट येट दे विल नॉट डिमांड, इसको उनको मालूम है कि डांट पड़ सकती है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, दे विल नेवर से नो टू एनीवन। जब वो डांट पे भी किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो उनको, सिंस दे वेरी सेंसिटिव, उनको नो बोलना भी बिल्कुल नहीं पसंद है। किसी ने कुछ बोला तो ठीक है, ये कर लेंगे, बट then eventually what happens if you keep on insulting these kids, कभी ना कभी तो वो उनमें उबाल आएगा जो वो बाहर निकलेगा। then they become rowdy and then they start insulting you, they will start breaking the things, they will start throwing the things, and they will start back answering you। इनका जो back answer होता है माइल्ड होगा, लेकिन इन ग्रेट इरिटेशन, हर चीज में वो बैक आंसर करेंगे और इरिटेट ही रहते हैं, बिकॉज आपने उस लेवल पे उनको थ्रो कर दिया है। आपने डांट डांट के कभी कोई बच्चा स्लो होता है ना, तो परेशानी में बोलिए या गुस्से में बोलिए, अक्सर माए या अक्सर पेरेंट्स बोलते तुम तो एकदम बुद्धू हो, तुम नालायक हो, तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं है। सुनता है बच्चा, सुनता है, वन फाइनल डे दे बिकम राउडी बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अनदर थिंग इज दैट जो बच्चे ऑन द अदर हैंड जो दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड, सो दे विल इवेंचुअली ब्रेक थिंग्स। उनके हाथ में जो भी चीज आएगी वो उसको सिर्फ फेंकेंगे। दे विल यूज एब्यूसिव लैंग्वेज, whoever is standing in front of them उसको मारेंगे या उसके साथ बदतमीजी से बात करेंगे। एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फटाफट जब बोलते हैं या बदतमीजी करते हैं या एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, दे स्वॉलो देयर ओन स्पिट। आप अक्सर ऐसे देखेंगे उनको, मैं ये कह रहा था, और वो गटकते रहते हैं, अपना ही थूक गटकते रहते हैं। और आप कंटिन्यूस देखते रहेंगे कि वो थूक गटकते जा रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते जा रहे हैं, बट फाइनली व्हाट हैपेंस, दे लेटर फॉल इल। वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दे स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, क्योंकि इतना ज्यादा एनर्जी, और उस एनर्जी को नेगेटिव तरीके से वो निकालते हैं, दे फाइनली फॉल इल। सो इवेंचुअली यू विल सी, आप कई बार होते हैं ना, पेशेंट्स आते थे कि मैम ये
जोर जोर से बोलता है, मारता है, फिर ये खुद ही है ना हिलने लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। दे ट्रेम्बल एंड दे बिकम एग्जॉस्टेड। दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये दो टाइप के बच्चे होंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना पड़ेगा कि भाई ये बच्चा मेरा ऐसा है तो कहीं ये ट्यूबर वाला बच्चा तो नहीं है, ये शांत बच्चा है तो कहीं ये पल्सिटिला तो नहीं है। आपको आगे ही आगे और कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, आगे ही आपको देखने पड़ेंगे। एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इन बच्चों का ये होता है कि बाय फेस दे लुक वेरी ओल्ड, दे लुक पेल एंड दे हैव डार्क सर्कल्स अंडर देयर आई बैग्स। और इनके आई बैग्स भी होते हैं और डार्क सर्कल्स भी होते हैं। और एक और चीज होती है कि जैसे ही इनके दांत आने लगते हैं दे स्टार्ट टू क्रम्बल एंड डिके एंड दे आर ऑलवेज ब्लैक। ऐसे टेढ़े मेढ़े रहेंगे, टूटते रहते हैं, आते रहते हैं। और मतलब जब भी टूट के वो जाते हैं, सो दे विल ऑलवेज क्रम्बल एंड डिके एंड दे विल ऑलवेज बी ब्लैक। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये एक आपको मैंने बताया था कि दे swallow their own spit in anger। एक और कैरेक्टरिस्टिक इनकी बहुत डिफरेंट सी है, दैट जो कैप्रिशियस वाले किड्स हैं, जो सनकी वाले हैं, दे आर सो इल ह्यूमर्ड दैट दे क्राई फॉर थिंग्स एंड व्हेन दे सिक्योर दैट थिंग दे विल पुश एंड थ्रो अवे। सो इन वेरी सिंपल हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक बच्चा कोई चीज के लिए रोया, थोड़ी देर तक रोया, पेरेंट ने वो चीज दिला दी। अब जैसी वो चीज दिला दी, वो उसको लात मारेगा, वो उसको फेंक देगा और वो फिर रोने लग जाएगा। सो दिस इज अगेन द कैरेक्टर्स। नहीं तो कई बच्चे होते हैं ना, जो चीज मांगी तो उनको लगता है मैंने गढ़ जीत लिया, ओके दे आर हैप्पी। बट दिस किड इज नेवर हैप्पी एंड दे आर ऑलवेज इल ह्यूमर टाइप ही होते, कैप्रिशियस होते। दैट इज वन रीजन इनको बोला जाता है कि ये बच्चे सन की होते हैं। एंड देयर मेमोरी इज क्वाइट वीक, दे विल नेवर रिटेन एनीथिंग दैट इज टॉट टू देम। एंड लाइक ट्यूबर किड्स, इनको भी सुबह उठना बिल्कुल नहीं पसंद है। दे ऑलवेज वेक अप इन अ वेरी बैड मूड इन द मॉर्निंग। एंड इवेंचुअली ये एक जैसे हम हमेशा बोलते हैं, पूछते हैं, माओ को पूछते हैं कि आपके बच्चे को क्या खाना पसंद है। So these kids, they are very fond of meat. They are fond of spicy and sweet food, and they are also very fond of rice and cold milk. इनको डाइजेस्ट नहीं होता जनरली मिल्क, बट अगर कोल्ड मिल्क होगा तो इनको रोकना मुश्किल है। दे विल डिमांड फॉर द कोल्ड मिल्क, वो बात अलग है, वो पियेंगे नहीं पियेंगे, बट उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। फ्राइड फूड, फैटी फूड और मिल्क इनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता है। एंड ऑफ कोर्स वही वाली बात है कि ये लोग जिद तो करते ही हैं। अनदर थिंग इज दैट these kids they are scared of blood, with the sight of blood they are scared of knife, they are scared of wound। अब तीनों चीजों में ब्लड है, so they are scared of these things। And another biggest characteristics is that the sexual desire in Staphylococcus kid is very high। they have a high desire, sexual desire for masturbation। और उसकी उनकी इस आदत की वजह से दे कैन नेवर मेक आई कांटेक्ट विथ एनीवन टू विथ whom दे आर टॉकिंग। क्योंकि उनको मालूम है। और जनरली हम बच्चों को बोलते हैं ना कि हाथ मत लगाओ उधर, बार बार। कई बार कैसा होता है कि बच्चों को खुजली आती है, हमें नहीं पता चलता कि उनको कीड़े की प्रॉब्लम हो रही है, या तभी वहां पे प्राइवेट पार्ट में उनको खुजली आती है कई बार। तो हम बोलते हैं ये गलत हैबिट है। तो उनको समझ में तो आता है कि ये गलत चीज है, बट द सेक्सुअल डिजायर इज वेरी हाई इन दीज किड्स। तो उस वजह से वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं किसी से भी बात करते हैं जब। एंड दे हैव व्हाट्स लाइक, बोलते हैं ना छोटी छोटी कॉलीफ्लावर के जो फ्लोरेट्स होते हैं ना, वो और फिग, अंजीर, अंजीर के जैसे वो दाने दाने होते हैं, तो दे हैव व्हाट्स ऑल ओवर देयर बॉडीज। एंड अनदर बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, एक और वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो स्टाई होता है आईलेट के ऊपर, खास करके ऊपर होता है, नीचे भी हो सकता है, बट जनरली सीन हमने दो तीन केसेस में देखे थे। वो स्टाई जो आईलेट के ऊपर होता है, वन आफ्टर द अदर आता रहता है। एंड व्हाट हैपेंस, दे लीव हार्ड नोडोसाइट्स, मतलब नोड्स की तरह है ना, वो अपना निशान छोड़ के चले जाते हैं, एक गांठ जैसी थी बोलते हैं। सो दे लीव दोज, बोलते हैं ना, हार्ड नोडोसाइट्स व्हेन दे वेक अप। मतलब वो आता जाता है चला जाता है, आता है चला जाता है, कंटिन्यूस इनके स्टाई फॉर्मेशन होती चली जाती है। दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक। वॉट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और है, जल्दी जल्दी खाएंगे, बोलेंगे पेट भर गया, बट इवेंचुअली दे विल स्टार्ट फीलिंग हंग्री। बहुत जल्दी इनको वापस हंगर लगने लग जाती है। नहीं मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे वापस भूख लग रही है। एंड दैट्स वन रीजन कि इनका स्टमक, इनकी गट प्रॉब्लम रहती है।
they cannot digest things very easily. Or milk, of course, milk is something 99% time these kids cannot digest. But a cold milk ऐसा है, हमने I remember there are 3 or 4 cases, तीनों चारों में एक चीज कॉमन थी कि ठंडा दूध देखते ही बच्चा रुकता नहीं है. Sty was something which we have seen in all the kids. और एक आध केसेस में हमने बॉट्स भी देखे थे. So these all things you will get in the books, but it is always better to note down the characteristics seen in the kids, in different type of kids. और ये जो हम दादा दवाई देते थे तो कंटिन्यूस देते थे. तो इनफैक्ट हम दूसरे तीसरे महीने, मैं और मानसी और रेशमा कई बार बोलते थे कि दादा इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, शुड वी चेंज. तो बोले कि नहीं, अभी हमको हिस्ट्री प्रॉपरली मिली नहीं है, हमें रुकना पड़ेगा. वी विल कंटिन्यू विद द सेम मेडिसिन एंड बिलीव मी आफ्टर 5-6 months हमको धीरे धीरे रिजल्ट मिलने लगते थे. एंड इवेंचुअली वी वुड रिवाइज द केस एवरी टाइम द सिम्टम्स वुड चेंज. कुछ अच्छे होते थे, वापस कुछ नए सिम्टम्स भी आते थे. But yes, of course, we had some very good results, and this was Steffes Garia from my side. अगर किसी को और कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या बताना है कि ये गलत था, we are very happy to note it down. Dr. Amjad, Dr. Rana साहब, anything to be said or added? अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी. स्टेफिस एगेरिया में जो मैंने नोट किया है वो जरूरी है डिग्निटी. ये हमेशा डिग्निटी की तलाश में होता है. तो अगर इसको दबाया जाए तो चूंकि उसकी डिग्निटी जो है वो मजरू होती है, तो इसलिए स्टेफिस एगेरिया जो है जहाँ पर डिग्निटी का लॉस हो रहा हो तो वहाँ बहुत अच्छा काम करती है. इट्स माय ओपिनियन. थैंक यू अमजद साहब. इसीलिए मैंने कहा था कि प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा so that we can have your perception of the medicine. अच्छा, दूसरी ये है कि इसके लिए एक माइंड रूबिक भी इस्तेमाल होता है. इसमें पल्स्टीला भी है, ब्राइट आकार भी है, कलकेरी आकार भी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए. उस एक रूब्रिक के अंदर चाहिए 4-5 दवाइयां. बहुत सारा रहेगा. एक सेशन हम डॉक्टर अमजद आपका भी रखेंगे so that we have your insight of the remedies also. इंशाल्लाह मैडम. तो बस ये उसके अंदर जो है स्टेफिस के अंदर जो है एक तो आंखें मिलाना वो आपने बता दिया, लेकिन डिग्निटी इसकी चूंकि मजबूत होती है तो इस वजह से आंखें नहीं मिला पाता है. जी ठीक है, ये भी हम नोट कर लेते हैं. डिग्निटी की तलाश, ये हमने नोट कर लिया. थैंक यू. ओके मैम. गुड इवनिंग. एक मेरी तरफ से भी प्लीज ऐड कर लीजिए. मैंने देखा कि इन बच्चों को यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है. वापस बोलिए शबनम जी. मैंने देखा है कि इन बच्चों में, स्टेफी बच्चों में यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है. यस, देखिए ये चीज हमने बताई थी ना कि द सेक्सुअल डिजायर इन किड्स आर वेरी हाई इन बच्चों में, और मैस्टरबेशन की भी आदत इनमें बहुत हाई होती है. सो डेफिनेटली यूटीआई प्रॉब्लम आती है. उस दौरान उसकी वजह से और भी बहुत प्रॉब्लम आती है. जैसे मैंने कहा कि दे आर ऑलवेज हंग्री, तो उनको गट इश्यूज भी होते हैं, उनको यूटीआई प्रॉब्लम भी आती है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. नोटेड मैम. एनीबडी एल्स? थैंक यू. मोस्ट वेलकम. So if anybody wants to unmute and kindly कुछ बोलना चाहते हैं तो please add. Okay, so let me meanwhile अगर आपको chat box में कुछ डालना है तो वो भी हम करते हैं. And meanwhile let me invite Dr. Mansi also. So I guess Dr. Mansi is kind of busy with the patient. There is some patient, serious patient hai. So if we have anything else, definitely I would want somebody to unmute themselves and they can join us in saying whatever they feel like. अब तक हमने remedies जो cover की थी वो Calcarea Carp, Calcarea Fos, Baraita, Steffes, Chamomilla, Pulsatilla, so Natrium Muraticum. तो किसी को अगर किसी में भी कुछ they have to add something, we would be glad to have them on board. Anybody else? Or else if nothing, then
we can अस्सलाम just. वालेकुम। हाँ जी अमजद साहब। अच्छा, कलकेरिया कार्ब और ब्राइटा कार्ब के अंदर जो मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आ रहा है ना, हाँ, वो ये है कि अगर इनको आपने चेक करना हो कि ब्राइटा कार्ब कौन सा है और कलकेरिया कार्ब कौन सा है, जी, तो एक तो कलकेरिया कार्ब का जो जिस्म होता है वो थुलथुला होता है, हाँ, राइट, सामने नजर आता है। लेकिन राइट, अगर आप इनसे हाथ मिलाएं दोनों से, तो ब्राइटा कार्ब का हाथ जो है वो थोड़ा सा सख्त होता है, और जो कलकेरिया कार्ब का हाथ होता है वो जैसे नरम रुई की तरह मुलायम होता है। ठीक तो है। ये एक सबसे बड़ी प्रैक्टिस है इनकी, जो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। दिस इज वंडरफुल अमजद भाई, बहुत ही खूब चीज बताई आपने, नोटेड डाउन। थैंक यू। थैंक यू अमजद भाई। ओके, सो वी ओके हैव, हाँ जी कौन ओके बोल रहे हैं? मैम, डॉक्टर शबनम। हाँ जी शबनम, बताइए। जी, एक चीज मैंने और नोट की थी, बल्कि पढ़ी भी थी एक जगह, और फिर मैंने इसको 2-3 जगहों पे देखा भी कि हाँ, पढ़ी ये थी कि कलकैया का आपका जो बच्चा है या पेशेंट है ना, उसका हाथ ऐसा लगेगा कि जैसे आपने मेंढक हाथ में पकड़ लिया है। हाँ, मैंने ये तो डिस्कस किया मैंने था। मॉइस्ट डिस्कस किया था कि मॉइस्ट, लेकिन उसको पकड़ के भी फील ऐसा ही आता है, हाँ, ठंडा, मॉइस्ट, गीलापन सा। तो और ना लिजलिजाहट होती है, हाँ, लिजलिजाहट होती है हाथ में। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक बच्चे की माँ ने यही कहा था कि मेरे बच्चे का हाथ है ना एकदम फ्रॉक की तरह फील होता है। सो मतलब हमें एक सेकंड के लिए सुन के तो हंसी भी आई थी और सुन के थोड़ा सा अजीब भी लगा था कि माँ कैसे बोल सकती, पर ये चीज दादा ने बोली थी, ये चीज उसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है। सो यस ऑफ कोर्स शबनम, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू एंड दिस हैज बीन वेरी प्रैक्टिकली सीन बाय अस। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग वंस अगेन। ऐसे आप बीच बीच में एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक किसी की जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है रेमेडीज उनकी वापस बताएंगे, सो इट कैन बी अ काइंड ऑफ a रिविजन इफ वी हैव टाइम इन हैंड ऑफ कोर्स। अल डॉक्टर Alkashan, I am not able to pronounce your surname, whatever. You can see the recordings in the YouTube. YouTube का channel मैं share कर दूंगी group के अंदर, so you can have those recordings there. And I guess Dr. Mansi is still busy, so she can share her remedy next time along with other remedies. So for today, we sign it off. Thank you, everyone. Thank you for joining with us.